آج پہلی دفعہ ہے کہ ایز اے پبلک ریپرزینٹیٹیو آپ نے مجھے فلور دیا ہے، تو آئی ایم ویری کانشیس کہ جو بھی بات کروں وہ فیکٹ بیسڈ ہو، ایویڈنسڈ بیسڈ ہو. جو ریزولوشن میں بیسیکلی پرائس کے اوپر کوشچن کیا گیا ہے اور یہ سگنل کیا گیا ہے پرائس سیٹنگ کے اوپر کوشچن. جی پلیز سن لے تنگی صاحب، پھر اس طرح ہی بات خراب ہو جائے گی، اس کا ماحول ٹھیک نہیں رہے گا. جی پلیز. ریزولوشن میں پرائس سیٹنگ کے اوپر کوشچن کیا گیا ہے اور یونیورسل ایکسیس ٹو ویکسینیشن پہ بات کی گئی ہے اور گورنمنٹ پہ کچھ ایلیگیشنز لیبل کی گئی ہیں. میں ون بائی ون اس کا جواب دینا چاہتی ہوں، مگر جواب دینے سے پہلے میں یہ بات کہنا چاہوں گی کہ کووڈ-19 تشریف رکھیں، تشریف رکھیں. فیصل صاحب اس طرح نہ کریں پلیز، تشریف رکھیں. جی جی تشریف رکھیں، اس طرح نہ کریں تنگی صاحب. تشریف رکھیں، وہ آپ کے سینئر کولیگ ہیں، ایسی بات نہ کریں. تشریف رکھیں. جی جی سینیٹر ثانیہ پلیز. جی میں تشریف رکھیں پلیز. جی میں عرض یہ کر رہی تھی کہ کووڈ-19 کے بارے میں کائنڈلی ذرا آرام سن لیں جی، پورے ملک کی بات ہے، اتنی اہم بات ہو رہی ہے، پلیز آرام سے حوصلے سے کووڈ-19 کے بارے میں سن لیجئے. 2017 میں جب WHO ڈائریکٹر جنرل کا الیکشن ہو رہا تھا تو میں 3 فائنلسٹس میں تھی. میں نے ایک الیکشن پاکستان کے لیے جیتا تھا. 200 دنیا کے ممالک سے 200 دنیا کے ممالک سے جب میں بات کرتی تھی تو میں ان سے یہ کہتی تھی کہ 3 چیزیں ہیں جو دنیا کو تباہ کر سکتی ہیں، اس پلانٹ کو تباہ کر سکتی ہیں. نمبر 1 اگر کوئی ورلڈ وار ہو جائے، نمبر 2 اگر کوئی زمین سے کوئی سیارہ ٹکرا جائے تو سویلائزیشن ختم ہو جائے گی، اور نمبر 3 کوئی ایمرجنگ اور ری ایمرجنگ انفیکشن آ جائے. آج here we are. تو میں کہنا یہ صرف چاہتی ہوں کہ یہ ایک عالمی مصیبت ہے، ایک عالمی وبا نہیں، ایک عالمی آفت ہے، اور پاکستان کے لیے یہ نیشنل سیکیورٹی ایشو ہے کہ ہماری کارکردگی اس میں کیسی ہے. تو پلیز اس چیز کو سیاست سے بالا تر ہو کے دیکھا جائے. اب میں آپ کی اسپیسیفکلی ریزولوشن پہ تو آتی ہوں، مگر سب سے پہلے لیٹ اس ریکیپ کہ کووڈ-19 میں حکومت پاکستان کی اور پاکستان کی کارکردگی کیسے رہی ہے. پاکستان نے کووڈ-19 میں وبا سے، بیماری سے بھی. پلیز شہری رحمان صاحبہ آپ پلیز دوسروں کو بھی بولنے دینا. جی آپ اور روبینہ صاحبہ اس طرح تو نہیں چلتا. پلیز تشریف رکھیں، پلیز تشریف رکھیں. شہری رحمان صاحبہ پلیز آپ لوگ بھی حوصلہ رکھیں. مجھے پتہ ہے کافی دن بعد سیشن ہو رہا ہے لیکن حوصلہ رکھیں پلیز. میں سب سے ریسپیکٹفلی کہنا چاہتی ہوں کہ دس از اے میٹر آف نیشنل سیکیورٹی، دس از اے میٹر آف انٹرنیشنل سیکیورٹی. کائنڈلی میری گزارش سن لیجئے. جب کووڈ-19 کی پہلے ویو آئی تو حکومت نے جانوں کی بھی، لوگوں کی جانوں اور صحت کا بھی معاملہ سامنے تھا اور لوگوں کے روزگار کا معاملہ بھی سامنے تھا، کیونکہ پاکستان میں 2,40,00,000 ایسے دہاڑی دار مزدور ہیں جن کی جو ڈیلی ویجز پہ وہ گزارا کرتے ہیں. پہلی ویو سے اچھی طرح ہم نپٹے، دوسری ویو سے ہم اچھی طرح سے نپٹے ان ٹرمز آف لائف سیوڈ، ان ٹرمز آف ڈیزیز پریولنس، اور آپ نے وہ ٹرینڈ لائنز باقی ممالک کے ساتھ کمپیریزن میں دیکھی، وہ سب ٹرینڈ لائنز لوگوں نے دیکھی ہیں. نمبر 1. اس کے علاوہ NCOC کا مثالی ادارہ قائم ہوا جس میں ایک مثالی فیڈرل پروونشل ریلیشن شپس کی بنیاد رکھی گئی. آج تک وہ ادارہ کام کر رہا ہے. ایک شفاف، منظم، غیر سیاسی انداز میں 1,50,00,000 خاندانوں کو تک 12,000 روپے پہنچائے گئے. پاکستان واز ایٹ دا برنک آف سول انریسٹ. یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہم کتنی پریکیریس سچویشن سے گزرے تھے. پاکستان واز ایٹ دا برنک آف سول انریسٹ، اور سیاست سے بالا تر ہو کے وزیر اعظم اور کابینہ نے یہ منظوری دی کہ ہم
ये बिल्कुल गैर सियासी बुनियादों पे एक डिजिटल निज़ाम से ये पैसे देंगे। एंड आई वांट टू प्लेस इट ऑन रिकॉर्ड चेयरमैन साहब कि जो सबसे ज़्यादा असिस्टेंस थी एहसास इमरजेंसी कैश की वो सिंध में गई है। दिस इज़ ऑन रिकॉर्ड, दिस इज़ अ मैटर ऑफ रिकॉर्ड। इसके अलावा बिजनेसेस को जो फैसिलिटेशन की, और उसके बाद काबीना कमेटी बनी वैक्सीनेशन, कोविड-19 वैक्सीनेशन की। तो अब मैं उस पर आ जाती हूँ। जहां तक वैक्सीनेशन की बात है, कोविड-19 की 4 तरीकों से वैक्सीनेशन होती है। आई बेग योर पार्डन, 4 सोर्सेस से वैक्सीन आ रही है। नंबर 1, हुकूमत उसको परचेज कर सकता है। नंबर 2, हुकूमत को वैक्सीन डोनेट हो सकती है। नंबर 3 जो है प्राइवेट सेक्टर को खोल के वैक्सीन ली जा सकती है। और नंबर 4, कोवैक्स के जरिए वैक्सीन हमें अवेलेबल होती है। सबसे पहले कोवैक्स पे बात कर लेते हैं। कोवैक्स एक इंटरनेशनल फ्रेमवर्क है जो आलमी इदारे सेहत ने बनाया है, ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन इनिशिएटिव के साथ मिलके। हमारे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने बहुत ही अर्लियर ऑन उसमें एप्लीकेशन डाल ली थी। 27 मिलियन डोजेस हमें एलोकेट हुई हैं। हमारी डोजेस जिस इदारे से आनी है, इंटरनेशनल इदारे से आनी है, उन्होंने अपनी जो प्रोडक्शन है वो इंटरनल कंजम्पशन के लिए डाइवर्ट की है। इसलिए जो फरवरी में आनी थी डोजेस वो अब मई में चले गए हैं। तो ये तो कोवैक्स की बात हो गई। जहां तक प्राइवेट परचेजिंग का ताल्लुक है, काबीना की जो कमेटी है वैक्सीनेशन की, उसके पास इख्तियार है। उन्होंने पिपरा से नेगोशिएशंस कर ली हैं, उनके पास बजट है, उनके पास अथॉरिटी है। सारी दुनिया में नेगोशिएशंस हो रही हैं और कैंसानो बायो की वैक्सीन की जो पहली ट्रांच है जो वो आ चुकी है। नंबर 3, डोनेशंस की मद में हमारा जो फ्रेंडली कंट्री है, जो हमारा जो बेस्ट फ्रेंड जो है चाइना, उन्होंने हमें 1.5 मिलियन डोजेस की कमिटमेंट की है, जिसमें से 2 ट्रांचेस आ चुकी हैं। सो माजरत के साथ 1400 डोजेस नहीं है, 1.5 मिलियन की बात हो रही है। और चौथी चीज़ प्राइवेट सेक्टर, जो आपके रेजोल्यूशन में क्वेश्चन से मुतालिक है। अब प्राइवेट सेक्टर जो है, अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए कि इस वक्त प्राइस सेटिंग कैसे हो रही है, मैं ये थोड़ा सा डाइग्रेस करके इस बात पे आना चाहती हूँ कि प्राइस सेट कैसे होती है दवाई की। 2018 में जो पॉलिसी आई थी, ड्रग पॉलिसी, उसमें प्राइसिंग का फॉर्मूला तय था। ड्रग्स की प्राइसेस 3 किस्म से तय होती हैं और इस वक्त ड्रग प्राइस में मॉरेटोरियम है, मगर 3 तरह से प्राइस डिटरमिन हो सकती है। नंबर 1, कंज्यूमर CPI के साथ एनुअली प्राइस एडजस्ट होती है। नंबर 2, जो कंपनीज होती हैं वो हार्डशिप के तहत अपनी प्राइस इंक्रीज की एप्लीकेशंस लाती हैं। और नंबर 3, जो न्यू केमिकल एंटिटीज होती हैं, यानी कि नई दवाइयाँ जो होती हैं, उनकी प्राइस सेटिंग का एक तरीक़ाकार है। अब वो जो तरीक़ाकार है वो 2018 की पॉलिसी में लिखा हुआ है और उसमें लिखा ये है कि सबसे पहले आप अपने रीजनल मुल्कों से प्राइस की कंपैरिजन करें। जब आप रीजनल मुल्कों से प्राइस कंपैरिजन करते हैं तो उसका एक फॉर्मूला दिया हुआ है। तो सबसे पहले तकरीबन 3 से 4 माह पहले ये समरी काबीना के पास आई थी कि जी जो हमारे रीजनल ममालिक हैं वहाँ पे इसकी कोई प्राइस नहीं है। एंड द क्वेश्चन वाज कि क्या हम इस प्राइस को डीरेगुलेट कर दें। और अगर हुकूमत पाकिस्तान अब काबीना ये फैसला करती कि ये प्राइस डीरेगुलेट कर दें तो प्राइवेट सेक्टर आज लाख रुपए की वैक्सीन बाजारों में बेच रहा होता। काबीना ने ये डिसाइड किया कि प्राइस डीरेगुलेट नहीं होगी और काबीना ने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को इंस्ट्रक्शंस दी कि आप तमाम एम्बेसीज को कांटेक्ट करें कि हमें रेफरेंस इंटरनेशनल प्राइस कहीं से मिल सकती है या नहीं। उससे नेक्स्ट कैबिनेट में फाइल आई ये बताने के लिए कि हमें कहीं प्राइस नहीं मिल रही। उसके बाद हुकूमत ने एक SRO जारी किया क्योंकि हुकूमत इज वेरी कॉन्शियस कि प्राइस गाउजिंग ना हो। एक SRO जारी किया 370 नंबर 1 ऑफ 2021। उस SRO के तहत लैंडिंग प्राइस जो कंपनीज बताती थी उसके तहत प्राइस का तयन
होना था और काबीना ने उसकी अब मंजूरी दे दी है। तो जो चाइनीज वैक्सीन है, एक चाइनीज वैक्सीन और जो रशियन वैक्सीन जिसका जिक्र हो रहा है, उसकी प्राइस उस बेसिस पे मुतय्यन होगी, मगर कुछ लोगों ने सिंध हाई कोर्ट में स्टे लेके जो प्राइस मुतय्यन कराइए उसके बारे में जी प्लीज मैं आपको सुन तो ले, उसके बाद आप बात कर लीजिए प्लीज जी। मैं आपको एग्जैक्टली उन्हीं बातों का जवाब दे रही हूं जो आपने रेस की हैं, and I think that you should have the patience to listen when facts and figures are presented. So मैं बता के रही हूं जी शहरी साहब प्लीज जी मैडम। So मैं बताना ये चाह रही हूं चेयरमैन साहब जी खत्म करें जी। जो प्राइसेस सेटल हुई हैं, जो प्राइसेस सेटल हुई हैं वो कवायद ज़वाबित के मुताबिक हुई हैं, वो ड्रग प्राइसिंग पॉलिसी के मुताबिक हुई हैं और हमारे पास कोई ऐसा तशरीफ रखें प्लीज, हाउस का माहौल सेनेटर रुबीना खराब ना करें, तशरीफ रखें जी। हमारे पास ऐसा कोई, जब भी प्राइस डिटरमिन होती है वो कवायद ज़वाबित के मुताबिक होती है, वो ड्रग प्राइसिंग पॉलिसी के मुताबिक होती है, एक प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, DRA की कमिटीज़ होती हैं, फेडरल गवर्नमेंट काबीना के पास मंजूरी के लिए चीज़ें लाई जाती हैं और कवायद ज़वाबित के मुताबिक ये चीज़ें सेटल होती हैं जो एग्जैक्टली ऐसे हो रही हैं। अब इन्होंने ये भी लिखा है कि हुकूमत क्यों एल्डरली को पहले दे रही है और हुकूमत क्यों एल्डरली को पहले दे रही है और हेल्थ वर्कर्स को दे रही है। तो मैं रिस्पेक्टफुली कॉलीग्स को बताना चाहती हूँ कि ये WHO की गाइडलाइंस हैं, ये वर्ल्ड वाइड एक नॉर्म है, क्योंकि वैक्सीन की सप्लाई कंस्ट्रेंड है, वैक्सीन की सप्लाई बहुत से वेल रिसोर्स्ड मुल्कों में भी कंस्ट्रेंड है और ये कंस्ट्रेंट्स जो हैं इतनी जल्दी ईज नहीं होंगे। जैसे जैसे वैक्सीन अवेलेबल होती जा रही है वैसे वैसे लोगों को दी जा रही है। उसमें एक प्रायोरिटी लिस्ट है, सबसे पहले फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स को प्रायोरिटाइज किया गया, फिर बिलो 70, अब उसको बिलो 60 कर दिया और इंक्रीमेंटली सबको ये दी जाएगी। वैक्सीन एक्सेस के लिए 1166 कैंपेन है, एक एल्गोरिदम है, एक डिजिटली इनेबल्ड फॉर्मूला है, कोई भी उस पे अपना ID कार्ड नंबर जो है वो सेंड कर सकता है, उनको एक क्यू में डाला जाता है और फिर उनको एक सेंटर में भेजा जाता है। तो ये जी सो मैं ये बताना चाहती हूँ कि हर चीज़ एक कवायद और ज़वाबित के मुताबिक हो रही है। कोविड से बचने के लिए हमें एक होल ऑफ सोसाइटी रिस्पॉन्स चाहिए और उस होल ऑफ सोसाइटी रिस्पॉन्स में हमने मिलकर काम करना है। और मेरी दोबारा गुजारिश होगी कि इस चीज़ को प्लीज सियासत से बालातर रखा जाए। दिस इज अ मैटर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, दिस इज अ मैटर ऑफ पाकिस्तान's pride and name in the Committee of Nations, and I have to tell you Pakistan is doing very well. Thank you, Mr. Chairman. Thank you जी। मैं हाउस में पुट कर लेता हूँ जी रेजोल्यूशन को, जो वोट्स होंगे जी इस पे अपनी डिबेट हो नहीं सकती जी। लीडर ऑफ द हाउस खड़े हैं, लीडर ऑफ द हाउस खड़े हैं जी, प्लीज जी। लीडर ऑफ द YouTube पर Googly TV देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में Googly TV टाइप करें। Googly TV के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।